Good morning, students. We have completed up till the public deposit and trade credit. Now we have the next source of raising borrowed fund is debentures or bonds. Firstly, debenture or bonds, both these all both are the sources of raising borrowed fund, and it is a long term source of finance. Means we have studied and we have discussed that the trade credit is a short term finance, public deposit is a medium term finance, and next, that is debentures or bonds, is a long term source of finance. Why we said it is a long term finance? Because through this debentures or through this bonds, the company can raise its long term source of finance. Means they can invest their debenture amount, they can invest this amount in a long term investment. So it is a long term source of finance. What is a debenture or bonds? I have already told you that debenture is a debt or it is a credit for a company. Means उधार अगर कहें हम normal language में, तो it's a debt, it's a liability for a company. Debenture holders are the owners who can take the stock or bonds of a company, and in return, if that person will uh, return this bond, the company have to pay to that person. डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर वो बॉन्ड्स या वो सर्टिफिकेट होते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी लोगों को, पब्लिक को इशू करती है. ऐसे टाइम पे इशू करती है जब उससे सबसे ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है और उसके पास खुद के ओनर्स फंड के न रिटेन अर्निंग होती है, न पब्लिक डिपॉजिट से उतना हो पाता है कवर, और ना ही शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स. अगर इन सब टॉपिक या इन सब के थ्रू हमारा प्रॉपर फाइनेंस, प्रॉपर कैपिटल नहीं हो पाती है, तब कंपनी डिबेंचर का यूज़ करती है जो कि बोरोड फंड का पार्ट है. डिबेंचर एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी जनरल पब्लिक को इशू करती है. इसमें बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, स्टॉक होते हैं. कंपनी ने इशू किया और जो भी पर्सन उस कंपनी के बॉन्ड्स को या स्टॉक को ख़रीदना चाहे वो परचेज़ कर सकता है. और जब उस पर्सन को चाहिए कि हमें इस कंपनी के बॉन्ड्स को वापस करना है और हमें कैश चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने कंपनी के बॉन्ड्स, हायर अमाउंट के बॉन्ड्स कंपनी के ले रखे होते हैं, और जब भी उन्हें कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उस बॉन्ड को कंपनी को वापस करके उनको कैश देते हैं. तो उस टाइम पे, जिस टाइम उसने किसी पर्सन ने बॉन्ड्स को ख़रीदा होगा, उस टाइम उस बॉन्ड की जो भी मार्केट वैल्यू रही होगी, जब आप वापस करेंगे तो उसी वैल्यू पे आपको वो कंपनी से अमाउंट मिलेगा. सो डिबेंचर इज़ अ स्टॉक and it is a debt for a company, it is a liability for a company, it is a certificate in which the bonds or stock, the any people can purchase the stock or bonds of a company, and whenever they need the cash they can return it to the company, and company have to pay to that person. Okay, the person who have hold the debenture of a company is known as debenture holder, and they have no voting rights, they have no control, and company will pay the security money and the mortgage also. Security and mortgage is here. Company have to pay the mortgage amount also. So it is a type of borrowed fund, and through this the company can raise the long term investment. For a company it is a long term source of finance. It is a liability for a company that those person who purchase the bonds of a company, the stock of a company, the company will have to pay to that person.
with interest. Okay, company have to pay with interest, and the person who have hold the debenture is known as debenture holder. Now come to the topic, that is features and characteristics of debentures. Let's see. The very first point is borrowed fund. We all know that debenture is a part of borrowed fund. We have already studied that debenture is a part of borrowed fund, and debenture holders are the creditors of the company. I have already told you that shareholders are the owners of a company and debenture holders are the creditors of a company. At the time teach you that at that time when I teach you the difference between shares and debenture, I have told you that shareholders are the owners of a company and debenture holders are the creditors of the company. Creditors of the company means in any situation company will get profit or loss, they have to pay the debenture holder because they are outsiders and with interest. Okay, so debenture holders are the creditors of a company. Next is fixed rate of interest, means कि company will get profit or loss, it doesn't matter. Debenture holders are the person who have get the fixed amount of interest, the fixed amount of money, means the principal amount and the interest. Rate of interest in debenture is fixed. So debenture holders will get the fixed rate of interest from the company. Okay, next is compulsory payment of interest. Compulsory payment of interest means कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हो लॉस हो किसी भी सिचुएशन में, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो गई है तो भी कंपनी को किसी भी सिचुएशन में डिबेंचर होल्डर के अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट को, वो भी विद इंटरेस्ट जो भी फिक्स्ड है, उसको पे करना ही करना है. सो इट इज़ कंपल्सरी टू पे द डिबेंचर होल्डर्स. Next is security. I have already told you that at the time of debenture, at the time when the person purchase the bonds or the stock of a company, means debenture, तो company will give the mortgage, the security money also. In shares, the company owner don't have to give the amount of security, but in debenture company should give the amount of mortgage, means the security money have to pay. Next is redeemable. Redeemable means कि debentures are always redeemable or paid back on expiry of a fixed period of time. एक fixed period of time के बाद आप उसके डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं. डिबेंचर्स कैन रिडीमेबल. अगर कोई पर्सन किसी कंपनी ने या किसी पर्सन ने डिबेंचर को ख़रीद लिया, बॉन्ड्स ख़रीद लिए और उसका अमाउंट मतलब कंपनी को नहीं दे पा रहा है तो वो डिबेंचर या बॉन्ड्स को कंपनी को वापस कर देगा. लेकिन ऐसे केस में कंपनी उसको जो भी उसने पहले पे किया होगा अमाउंट वो वापस नहीं करेगी, तो इसको कहते हैं हम रिडीम्ड. नेक्स्ट इज़ नो वोटिंग राइट्स. दैट जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी, नॉट द ओनर ऑफ अ कंपनी, एंड द वोटिंग राइट्स एंड द कंट्रोल ऑफ that person hold the voting rights or the control who are the owners of a company, and debenture holders are the creditors of the company, so they don't have any voting rights or any control of the business firm or the company. Next is appointment of trustee. Appointment of trustee means कि when the large amount of debentures are sold to the general public, मीन्स डिबेंचर की लार्ज अमाउंट अगर पब्लिक एक ही साथ कई सारे डिबेंचर्स कंपनी एक ही कंपनी के परचेज़ कर रही है, या फिर कंपनी अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर्स, लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर कंपनी को सोल्ड कर रही है, तो इस केस में एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट.
by the government, a person, that is trustee, has been appointed for the कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। मीन्स एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम ट्रस्टी कह रहे हैं। वो ट्रस्टी कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। उसको मेनली उसका वर्क ये रहता है, उसको इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि जो भी पब्लिक और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, मीन्स कि मॉर्गेज अमाउंट दे रहा है वो, सिक्योरिटी मनी वो दे रहा है, और कितने तक के पीरियड में वो बॉन्ड्स की कैश में पेमेंट करेगा। मीन्स जब ये पर्सन, ये पब्लिक जो बॉन्ड्स लेके वापस आएगी कंपनी के पास, इन केस दे नीड कैश, तब कंपनी कितना उसे पे करेगी। तो ये भी एक प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है कि कंपनी इतना अमाउंट इस डेट को, या जब भी कैश की रिक्वायरमेंट होगी पब्लिक को तो वो बॉन्ड ला के जब भी कंपनी को देगी तो कंपनी हैव टू पे। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ के सेटलमेंट के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम ट्रस्टी कह रहे हैं। ट्रस्टी कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, और उस केस में इसको अपॉइंट किया जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे पब्लिक को सोल्ड करती है कोई भी कंपनी। ओके, सो दीज आर द features or the characteristics of debentures. Now moving towards the merits or advantages of debentures. First is low cost. Low cost means the cost of raising debentures is less than the cost of raising preference shares or equity shares. It's a cheaper source of finance. डिबेंचर होल्डर्स को या डिबेंचर्स को रेस करने के लिए हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स। कहने का मतलब ये है कि हम जिन लोगों को इनवाइट करते हैं, हम जिन लोगों को एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि कम एंड परचेज आर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, तो उसमें हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है बजाय डिबेंचर्स की। भाई डिबेंचर्स जो लेंगे तो उनको पता होगा कि आज नहीं कल हमारी पेमेंट होनी है, वो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमको मॉर्गेज मनी भी मिल रहा है। तो कंपनी इनकेस अगर नहीं भी पे करती है तो हमारा जो सिक्योरिटी मनी मिला उसको तो हम अपना वसूल कर लेंगे। तो इसलिए डिबेंचर को रेस करना, इसकी कॉस्ट काफ़ी लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर। बहुत कम ही लोग जो हैं कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि भाई इनको तो तभी मिलता है प्रॉफिट, इनको तो तभी शेयर मिलता है जब इनका कंपनी में प्रॉफिट अर्न होता है, और इक्विटी वाले को तो बेचारे को जब बचता है तब मिलता है। तो इसमें हमारी कॉस्ट रेज करने में काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल मीन्स कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि डिबेंचर होल्डर्स का कंपनी या बिजनेस में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। इट मीन्स कि वो किसी भी डिसीजन मेकिंग या किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस वजह से डिबेंचर फाइनेंसिंग किसी भी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ कंट्रोल में उनका डाइल्यूशन नहीं होता। मीन्स कि जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी के साथ साथ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी तरह का कोई सैक्रिफाइस या कोई भी जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपना इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने बॉन्ड परचेज़ करते हुए लिया है वो उससे मतलब रहता है। उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि वोटिंग राइट्स हैं या डिसीजन मेकिंग है, तो इससे उनका कोई भी मतलब नहीं होता। नेक्स्ट इज़ अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स। लार्ज नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करता है कि डिबेंचर होल्डर्स को पता होता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस, हमने कंपनी के बॉन्ड्स लिए हैं तो जब भी हम उसको वापस करने जाएंगे तो कंपनी हमको पे करेगी, वो भी विद इंटरेस्ट। तो इस वजह से ऐसे ज़्यादातर पर्सन्स इस तरह की चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो जाहिर है कि जो इन्वेस्टर्स अपना जिनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स डिबेंचर्स को ख़रीदने में, उनके कंपनी के बॉन्ड्स को ख़रीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। वो इंटरेस्ट जो कि डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है वो कंपनी के एक्सपेंस साइड में शो होता है।
जब कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट कंपनी के एक्सपेंस में शो होगा तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो कम हो जाएगी। जब टोटल इनकम कम होगी तो उस पर जो टैक्स होगा वो भी कम हो जाएगा। मीन्स हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। अगर डिबेंचर होल्डर को दिया हुआ इंटरेस्ट कंपनी के इनकम में इन एक्सपेंस साइड ऐड हो जाए तो कंपनी की इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फ़ायदा किसके लिए? कंपनी के लिए। नेक्स्ट इज़ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये कह रहा है कि जितना हमको डिबेंचर फंड से कंपनी की एक अर्निंग रेट जो डिबेंचर फंड की तरफ से यूटिलाइज़ करती है कंपनी, मतलब डिबेंचर होल्डर की तरफ से, डिबेंचर फंड की तरफ से जितना कंपनी का जो अर्निंग रेट है वो हायर होती है, डिबेंचर होल्डर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट उतना ही कम होता है। मतलब हमें मिल ज़्यादा रहा है और हम दे कम रहे हैं। डिबेंचर फंड से कंपनी की जो अर्निंग है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई पहुंच जाती है, जबकि उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट कम होता है। तो इस तरह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, मीन्स कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, वो डिबेंचर के होने की वजह से, डिबेंचर की प्रेजेंस की वजह से उनकी जो अर्निंग होती है, कंपनी की टोटल इनकम या कैपिटल स्ट्रक्चर, वो काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड हो जाता है। डिबेंचर्स हाई रेट ऑफ बॉन्ड को परचेज करेंगे तो इससे कंपनी की अर्निंग या कंपनी का टोटल इनकम का है तो वो कहीं ना कहीं रेज हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अ कंपनी कैन रीपे द फंड्स raised through debentures when it does not require it anymore. The danger of overcapitalization gets minimized because debentures can be redeemed out of profit. Flexibility means कि आसानी से चेंज करने वाला, जिसको हम आसानी से चेंज कर लें, जिसमें हम चेंजेस आसानी से ले आएँ। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कंपनी जो डिबेंचर होल्डर की तरफ से फंड्स कलेक्ट करती है, मीन्स बोरोड फंड, तो बोरोड फंड को कहीं ना कहीं वो कंपनी आज नहीं तो कल उन डिबेंचर्स को वापस करेगी, रीपे करना ही करना है, वो भी विद इंटरेस्ट। तो इससे क्या होता है कि ऐसे में जो हमने बताया आपको रिडीमेबल, ये फीचर्स में मैंने 5th पॉइंट बताया था कि डिबेंचर्स को हम आसानी से रिडीम कर सकते हैं। तो वो डिबेंचर होल्डर्स जो आकर अपने डिबेंचर को रिडीम करेंगे उससे क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर वो पे नहीं कर पाए हैं तो वो अगर रिडीम कर देंगे कंपनी को वापस कर देंगे बॉन्ड्स, लेकिन जितना अमाउंट वो पे कर चुके हैं उसको कंपनी वापस नहीं करती, तो इट्स द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो ये क्या होगा? ये कंपनी के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इज demerits. Demerits, or we can say disadvantages of debentures. First is fixed obligation. फिक्स्ड ऑब्लिगेशन में ये कह रहे हैं कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है। कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न करे या नहीं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, कंपनी को जो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिबेंचर होल्डर्स को पे करना ही करना है। ये होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कंपनी के लिए उस टाइम पे, भाई प्रॉफिट जब है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लॉस होता है तो कंपनी को अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, और फिर वही हमारी जो रिटेन अर्निंग्स हैं या हमारा सेविंग्स हैं या इक्विटी शेयर्स हैं वही हमारे काम आते हैं। तो ऐसे केस में जब कंपनी ने लॉस किया हो तो भी डिबेंचर होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है, वो भी फिक्स्ड रेट, तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी। रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी ये कहता है कि ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक या वो लेंडर्स जो कंपनी के फंड्स, जो कंपनी को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डिबेंचर्स में कम से कम इन्वेस्ट करने में हेजिटेट होते हैं। मतलब डिबेंचर के केस में वो कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स ख़रीदने के लिए हैवी अमाउंट उनके पास कैश होना चाहिए, और फिर कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो उनका पैसा डूब सकता है।
तो इस वजह से कंपनी, इस ऐसे केस में कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, मीन्स कि इनकम, वो कहीं ना कहीं लो हो जाती है। चार्ज ऑन असेट्स मीन्स अगर इन केस कंपनी जो डिबेंचर्स होते हैं उनका पूरा राइट होता है कंपनी के फिक्स्ड असेट्स पे, मींस सिक्योरिटीज़। हमने भी आपको बताया था कि डिबेंचर जब भी हम इशू करते हैं या बॉन्ड्स जब भी इशू करते हैं तो कंपनी को सिक्योरिटी या मॉर्गेज, जिसको हम गिरवी कहते हैं, वो देना होता है। अगर गिरवी में, अगर सिक्योरिटी में कंपनी ने अपने फिक्स्ड असेट्स दिए या कोई भी प्रॉपर्टी दी और ऐसा टाइम आया, डिप्रेशन का टाइम आया, कंपनी के पास बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, कंपनी बिल्कुल उसके पास अर्निंग्स नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि कंपनी उसके इंटरेस्ट के अमाउंट्स को अगर नहीं पे कर पाई, डिबेंचर होल्डर के को अमाउंट ना दे पाई, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी की जो फिक्स्ड असेट्स हैं जो उन्होंने एज अ सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर को दिया था, वो उससे अपना अमाउंट बेच कर, सोल्ड करके उस पर वो क्लेम कर देंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उस टाइम होती है जब कंपनी में बिल्कुल लॉस हो रहा हो या डिप्रेशन का पीरियड आया हो, तो वो फिक्स्ड एसेट जिसको कंपनी ने एज अ सिक्योरिटी रखा है, तो वो क्या करेंगे डिबेंचर होल्डर्स, अगर उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिला रेगुलर, तो वो फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड कर देंगे कंपनी को, उस पर वो क्लेम कर देते हैं और फिर वहाँ से अपना पैसा ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कंपनी के लिए। नो वोटिंग राइट्स, जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि वो क्रेडिटर्स होते हैं, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सो दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स, दे डोंट हैव एनी डिसीजन एंड दे डोंट हैव एनी, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस और अ कंपनी। तो ये थे आपके डिमेरिट्स। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स के जो डिमेरिट्स हैं, इसमें मैंने आपको बताया 4 पॉइंट्स। इसके अलावा आप कई सारे पॉइंट्स जो फीचर्स में अभी हमने बोले, जैसे कि न्यू कंसर्न्स के लिए या न्यू बिजनेसमैन के लिए या न्यू कंपनी के लिए ये डिबेंचर्स सूटेबल नहीं होते, मींस नॉट सूटेबल फॉर न्यू कंपनीज या न्यू कंसर्न्स। क्यों? क्योंकि कंपनी जो पब्लिक होती है, वो जिनकी रेप्यूटेशन होती है अच्छी, जिनकी गुडविल होती है मार्केट में अच्छी, तो उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। और ऐसे कंपनी जो कि अभी मार्केट में न्यू आई है, जिनके बारे में लोगों को शायद अभी इतना नहीं पता, तो उस कंपनी के बॉन्ड्स या उस कंपनी में लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं, इन्वेस्ट करना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, उस कंपनी के बॉन्ड्स को जल्दी प्रेफर नहीं करते। तो इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नॉट सूटेबल फॉर न्यू कंसर्न्स या न्यू कंपनीज। ओके, इसके अलावा और भी अगर आपको पॉइंट्स आएँ जो कि आपने फीचर्स में पढ़े, तो वो भी इंक्लूड्स कर सकते हैं, बट इट शुड बी विद द टॉपिक से हट कर आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका डिबेंचर and it is a long term source of finance. Next we have the difference between shares and debentures. यहाँ पर आप shares means preference and equity और debentures के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे। इसको एक काम करिएगा, आप इसको घर से पढ़ लीजिएगा, इसको बुक से रीड करिएगा और फिर हम एक एक पॉइंट को उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये इसको टेक इट ईजी मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, और एग्ज़ाम में आए ना आए इसको आपको समझना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ओके।